آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ پر حملہ۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن نے برطانوی وزارت خارجہ کو خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا، پہلے آگاہ کیا تھا، سابق چیف جسٹس کی آمد پر ایسا واقعہ ہو سکتا ہے۔ سابق چیف جسٹس کے لیے سیکیورٹی بھی مانگی گئی تھی جو نہیں دی گئی۔ برطانیہ اپنے قوانین کے تحت ہنگامہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن نے اپنی وزارت خارجہ کو بھی خط ارسال کر دیا۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن نے وزارت خارجہ سے مزید اقدامات کے لیے رہنمائی مانگی۔ برطانوی وزارت خارجہ کو سابق چیف جسٹس کی آمد پر ہنگامے سے متعلق بتا دیا تھا۔ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر پی ٹی آئی ورکرز کا مبینہ حملہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا واقعے کا نوٹس، حملے میں ملوث پاکستانیوں کی شہریت منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ محسن نقوی نے کہا، حملہ آوروں کے خلاف پاکستان میں ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ حملہ آوروں کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ ان کی شہریت منسوخ کرنے کے لیے معاملہ کابینہ کو بھیجا جائے گا۔ برطانیہ کی قدیم قانونی درسگاہ میڈل ٹیمپل میں گزشتہ روز سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے واپسی پر سابق چیف جسٹس اور ان کی اہلیہ کو چند افراد کی جانب سے مبینہ حملے کا سامنا کرنا پڑا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی جاری کی گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سابق چیف جسٹس اپنی اہلیہ کے ساتھ میڈل ٹیمپل سے سیاہ گاڑی میں روانہ ہو رہے تھے کہ درسگاہ کے دروازے پر موجود پی ٹی آئی ورکرز نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے افسوسناک واقعے کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے نادرا کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا ہے۔ نعیم اصغر، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اے ٹی سی جج ابو الحسنات کے رویے پر برہم۔ جسٹس میاں ابو الحسن اورنگزیب کے اعظم سواتی کی جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا، سائفر ٹرائل میں بھی اس جج کے کارنامے دیکھے ہیں، یہ ابھی تک یہی ہے اور پھر ایسے ہی کام کر رہا ہے۔ ہم نے ممبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا کہ اس کو فوری طور پر واپس بھیجا جائے۔ بالکل، سائفر ٹرائل میں بھی اس جج کے کارنامے دیکھے ہیں، یہ ابھی تک یہی ہیں اور پھر ایسے ہی کام کر رکھا ہے۔ یہ جج آرڈر دے کر تاریخ دیتا ہے، پھر ضمانت مسترد کر دیتا ہے۔ دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی۔ اس آدمی کو یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی سیاسی کارروائیاں کر سکے۔ وزارت قانون اس کو سپورٹ کر رہی ہے، کہتی ہے یہی کام کرو، اس لیے تمہارا بٹھایا ہوا ہے۔ کیا ابو الحسنات کی عدالت میں کیمرے لگے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اے ٹی سی جج ابو الحسنات کے رویے پر برہم۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کے اعظم سواتی کی جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس، جس میں انہوں نے کہا، سائفر ٹرائل میں بھی اس جج کے کارنامے دیکھے ہیں، یہ ابھی تک یہی ہیں اور پھر ایسے ہی کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ممبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا ان کو فوری واپس بھیجا جائے۔ یہ جج آرڈر دے کر تاریخ دیتا ہے، پھر ضمانت مسترد کر دیتا ہے۔ لاہور میں اسموگ اور فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے گرین لاک ڈاؤن نافذ۔ گرین لاک ڈاؤن ایریاز میں تعمیراتی کاموں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ موٹر سائیکل رکشوں کا داخلہ بند کرنے کے ساتھ ساتھ کمرشل جنریٹرز کے استعمال پر بھی پابندی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوپن باربیکیو اور کھلے فوڈ پوائنٹس پر بھی رات 8 بجے کے بعد پابندی ہوگی۔ پنجاب حکومت نے لاہور کے ہاٹ سپاٹ ایریاز میں گرین لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ محکمہ ماحولیات نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گرین لاک ڈاؤن ایریاز میں تعمیراتی کاموں پر پابندی ہوگی۔ چنگچی رکشوں کا داخلہ بھی بند، جبکہ کمرشل جنریٹر استعمال کرنے پر پابندی ہوگی۔ ان علاقوں میں اوپن باربیکیو پر رات 8 بجے کے بعد بین ہوگا۔ لکڑیاں جلانے پر پابندی۔ شادی ہال مارکیز رات 10 بجے بند، جبکہ 4 نومبر سے ان علاقوں میں واقع سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم ہوگا۔ گرین لاک ڈاؤن فضائی آلودگی کے ہاٹ سپاٹ ایریاز میں لگایا گیا ہے۔ ڈیوس روڈ، اجرٹن روڈ، ڈیورنٹ روڈ اور کشمیر روڈ ہاٹ سپاٹ ایریاز میں شامل ہیں۔ اسی طرح شملہ پہاڑی سے گلشن سینما اور ایبٹ روڈ بھی ہاٹ سپاٹ ایریاز میں شامل ہیں، جبکہ شملہ پہاڑی سے ریلوے اسٹیشن اور ایمپریس روڈ بھی ہاٹ سپاٹ ایریا ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں۔ کوئن میری روڈ اور اس کے اطراف کو بھی آلودگی والے علاقوں میں شامل کیا گیا ہے۔ آصف محمود، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ مریم نواز کا بھارت سے اسموگ ڈپلومیسی کا اشارہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھارتی پنجاب کے ہم منصب کو خط لکھنے کا اندیا۔ مریم نواز نے کہا، اسموگ کا مسئلہ سیاسی نہیں، انسانی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھارت سے اسموگ ڈپلومیسی کا اشارہ۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں
तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए। हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत के लिए, हमारे अवाम की सेहत के लिए जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले सरकारी कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रखा। मरियम नवाज ने पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने का भी ऐलान किया। न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये हुकूमत का, किसी भी हुकूमत का, पब्लिक सेक्टर का पहला कैंसर हॉस्पिटल, जहाँ पे इंशाअल्लाह ताला किसी मरीज को इनकार नहीं होगा। ये देखे बगैर कि वो स्टेज 1 का पेशेंट है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, ये आज लाखों जिंदगियों का दिया है जो अल्लाह ताला के फजल करम से हम आज जलाने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का पहला फेज 1 साल और दूसरा फेज 2 साल में मुकम्मल होगा। वज़ीर आला पंजाब ने अपने दफ्तर में दिवाली का केक काटा और हिंदू खानदानों में चेक्स तकसीम किए। मरियम नवाज ने अक़लियती बरादरी के लिए खुसूसी कार्ड बनाए और माइनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम करने का भी ऐलान किया। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अपडेट्स आप जान चुके हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने का ऐलान। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती यादाश्तें 27 से बढ़कर 34 हो गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुख्तसर दौरा सऊदी अरब। सऊदी हुकूमत को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने पर कायल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह और सऊदी शाही दीवान के मुशीर की मुलाकात में पाक सऊदिया इक्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह ने बताया 5 MOUs पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। When we came to Pakistan, we concluded in 3 days 27 MOUs valued at $2.2 billion. And I mentioned at that time during the various events that this is only the beginning. That number has increased from 27 MOUs and agreements to 34. The value of those agreements has also increased to $2.8 billion. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। These MOUs which were signed a few weeks back in Islamabad, agreements also, the ink hasn't dried and some of the projects are now under implementation, which is a great news. Hopefully I'll be returning back to my home, not second home, Saudi Arabia. We had discussed those very important projects which have mutual interest and benefits. वज़ीर आज़म ने रियाद में 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के मौके पर वियतनाम के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान का सरमायाकारी दौरा करने की दावत दी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। कतर के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ ने दोहा एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और दीगर से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, कतर की क़यादत के साथ बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए तामीरी बातचीत का मुंतज़िर हूँ। वेलकम बैक। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली, सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन के 2 नाम फाइनल। कौमी असम्बली से हुकूमत की जानिब से बिलावल भुट्टो को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद कर दिया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब जुडिशल कमीशन में अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। सेनेट से नून लीग के इरफान सिद्दीकी, अपोजिशन के शिबली फराज जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर कल नाम स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को इरसाल करेंगे। आर्टिकल 175A के तहत 13 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन तश्कील दी जाएगी। सुप्रीम जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस की तश्कील, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की तकर्री करेगा। अपडेट करें, 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली, सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन के 2 नाम फाइनल। कौमी असम्बली से हुकूमत की जानिब से बिलावल भुट्टो को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद कर दिया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब जुडिशल कमीशन में अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब हुकूमत स्मोक पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। मरियम नवाज ने स्मोक के मुस्तकिल खात्मे के लिए 10 साला प्लान दिया है। हर महकमे को स्मोक के खात्मे के लिए अहदाफ सौंप दिए गए। कैमरा फिटनेस सर्टिफिकेशन की रजीम शुरू हो चुकी है और इसको प्राइवेट सेक्टर की जो वर्कशॉप्स हैं उनको लाइसेंस देकर व्हीकल्स को आप अपनी एग्जामिन करा के अपना फिटनेस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। पहली दफ़ा पंजाब में थर्मल कैमरा सेफ सिटी के इस्तेमाल से जो गाड़ी और जो मोटर बाइक जो व्हीकल सड़क के ऊपर जाता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे वो पुरानी बस हो, नई गाड़ी हो, अगर उससे धुआं निकल रहा है तो वो थर्मल कैमराज एनवायरमेंटल सेंसर्स के जरिए वो उसको नोटिफाई करता है, उसको देखता है और उसको चालान करता है। कानून में तब्दीली, मोटर व्हीकल एक्ट में तब्दीली करके उसके रूल्स के अंदर पहली दफ़ा जो 3 दफ़ा चालान के बाद अपनी स्मोक एमिटिंग व्हीकल को एग्जामिन करा के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेगा, उसको इम्पाउंड कर दिया जाएगा और क्लैंप कर दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी खबर यह है 45 शहरों में गैर मनक़ूला जायदाद की सरकारी कीमत में 5% का इजाफा कर दिया गया। प्रॉपर्टी की कीमत को मार्केटिंग रेट्स की 80% के मसावे कर दिया गया है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत 11 बड़े शहरों में पुराने प्रॉपर्टी रेट्स बरकरार। गैर मनक़ूला प्रॉपर्टी के नए सरकारी रेट्स का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। 45 शहरों में गैर मनक़ूला जायदाद की सरकारी कीमत में 5% इजाफा। मुनफरिद अंदाज के हामिल असिस्टेंट कमिश्नर कराची हासिम बंगवार को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, हासिम बंगवार को SNGDA रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। मुनफरिद अंदाज के हामिल असिस्टेंट कमिश्नर कराची हासिम बंगवार को ओहदे से हटा दिया गया। बलूचिस्तान के ज़िला योब में गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का क्लर्क सैकड़ों तलबा की इम्तिहानी दाखिला फीस के 25 लाख रुपए ऑनलाइन जुए में हार गया। मसीह जानते हैं सरदार हमीद खान से। क्लर्क का इम्तिहानी दाखिला फीस की रकम ऑनलाइन जुए में हारने का इंकशाफ। नहम और दहम जमात के सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल जोब के प्रिंसिपल वजीर खान ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया, क्लास नहम और दहम के 878 तलबा की इम्तिहानी दाखिला फीस बर वक्त जमा न होने की सूरत में तलबा के दाखिले मुतासर होने का खदशा है। पुलिस ने क्लर्क शहजाद जमाल को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम से 96,000 रुपये बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी। शहरियों ने मुतालबा किया है कि महकमा एजुकेशन तलबा की फीस की अदायगी से मुताल्लिक इक़दामात करे। गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए कि पहले कमेटी बनाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। अब जो बच्चों को मुस्तकबिल दाव पर लग रहा है उनसे कोई पूछने वाली, क्या हुकूमत उनके लिए कोई किरदार अदा, क्या बच्चों के लिए फीस जमा करेगा। ऐसे करप्ट जो ना क्लर्क और करप्ट माफिया को जो ना मुसलत करके कि वो इम्तिहानी फीसिस को भी नहीं छोड़ बख्श रहे। दूसरी जानिब स्कूल के प्रिंसिपल का तबादला करके वाक़े की आला सतह पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सरदार हमीद खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। कैनेडियन नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन का कहना है, भारतीय वजीर ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया है। हरदीप सिंह नजर के कत्ल से मुताल्लिक कैनेडियन नायब वजीर खारजा ने कौमी सलामती कमेटी में बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमरीकी अखबार के मुताबिक सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने के पीछे भारतीय वजीर दाखिला है। कैनेडियन नायब वजीर खारजा ने वाज़ेह किया कि उन्होंने अमरीकी अखबार में अमित शाह के नाम की तस्दीक की है। दूसरी जानिब भारतीय हुकाम ने इल्ज़ामात को मुज़ाहिका खेज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया। ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी है। वनडे बैटिंग में बाबर आजम पहली पोजीशन पर मौजूद है। टेस्ट बैटिंग में साउद शकील और बॉलिंग में नुमान अली पहली बार टॉप 10 में आ गए। वनडे बैटिंग में फ़खर जमान का 9वां और इमामुल हक का 11वां नंबर है। कप्तान मोहम्मद रिजवान की 26वीं पोजीशन और बॉलर्स में शाहीन शाफरीदी 7वें नंबर पर हैं। टेस्ट बैटिंग में साउद शकील ने 20 दर्जे लंबी छलांग लगाई और 7वीं पोजीशन पर पहुंच गए। टेस्ट बॉलर्स में बुमराह से पहली पोजीशन छिन गई। रबाडा पहले नंबर पर आ गए। नुमान अली 8 दर्जे तरक्की पाकर पहली बार 9वीं और साजिद खान 12 दर्जे तरक्की से 38वें नंबर पर पहुंच गए। ऑलराउंडर्स में नुमान अली 5 दर्जे तरक्की करके 19वीं पोजीशन पर आ गए। T20 बैटिंग में बाबर आजम 4थे और मोहम्मद रिजवान 5वें नंबर पर हैं।
टिक टॉक के बानी योंग यामिंग चीन के अमीर तरीन आदमी बन गए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक होरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने चीन के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में पहले नंबर पर टिक टॉक के बानी योंग यामिंग हैं, जिनकी जायदाद की मालियत 49.3 अरब डॉलर हो गई। उनकी ये जायदाद 2023 के मुकाबले में 43% ज्यादा है। इसके साथ ही स्टूडियोज फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।